ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کراچی میں سرکاری زمینوں پر قبضے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ لینڈ گریبرز اور بااثر سیاسی شخصیت کے گٹھ جوڑ سے قیمتی اراضی پر قبضے جاری ہیں۔ سرکاری زمینیں ہتھیانے والے بے خوف، معاونت کرنے والے سرکاری افسران کی موجیں، محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کی پراسرار خاموشی۔ کراچی میں سرکاری زمینوں پر قبضے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ لینڈ گریبرز اور بااثر سیاسی اور سماجی شخصیات کے گٹھ جوڑ سے قیمتی اراضی پر قبضے جاری ہیں۔ سرکاری زمینیں ہتھیانے والے بے خوف ہیں، معاونت کرنے والے سرکاری افسران کی موجیں، محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کی پراسرار خاموشی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ضلع ملیر میں 25 ایکڑ سرکاری اراضی پر قبضہ، ضلع انتظامیہ کا لینڈ مافیا کے خلاف آپریشن۔ سرکاری زمین پر ہونے والی تعمیرات مسمار، کروڑوں روپے مالیت کی 25 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار، قبضہ مافیا سرکاری زمین پر پلاٹنگ کر کے فروخت کر رہے تھے۔ ضلع ملیر میں 25 ایکڑ سرکاری اراضی پر قبضہ، ضلع انتظامیہ کا لینڈ مافیا کے خلاف آپریشن۔ سرکاری زمین پر ہونے والی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا۔ کروڑوں روپے مالیت کی 25 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار، قبضہ مافیا سرکاری زمین پر پلاٹنگ کر کے فروخت کر رہے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ضلع ملیر میں زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا معاملہ، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 2 اعلیٰ افسران عہدوں سے برطرف۔ سیکریٹری ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اختر حسین میو کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر شاہد محسن بھی عہدے سے برطرف کر دیے گئے۔ دونوں افسران کو محکمہ لوکل گورنمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ محکمہ بلدیات سندھ نے معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ضلع ملیر میں زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا معاملہ، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 2 اعلیٰ افسران عہدوں سے برطرف۔ سیکریٹری ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اختر حسین میو معطل۔ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر شاہد محسن بھی عہدے سے برطرف کر دیے گئے۔ دونوں افسران کو محکمہ لوکل گورنمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ بلدیات سندھ نے معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ عدالتی حکم پر کڈنی ہل پارک کو اصل حالت میں لانے کے لیے آپریشن آج ہوگا۔ مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق آپریشن کے دوران پولیس اور رینجرز کی نفری تعینات کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع شرکی محمد علی شاہ کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خط۔ مراسلے کے مطابق KMC اور اینٹی انکروچمنٹ سیل ہفتے کو تجاوزات کے خلاف آپریشن کرے گا۔ عدالتی حکم پر کڈنی ہل پارک کو اصل حالت میں لانے کے لیے آپریشن آج ہوگا۔ مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق آپریشن کے دوران پولیس اور رینجرز کی نفری تعینات کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع شرکی محمد علی شاہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خط ارسال کر دیا ہے۔ مراسلے میں کہنا ہے کہ KMC اور اینٹی انکروچمنٹ سیل ہفتے کو تجاوزات کے خلاف آپریشن کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے نالوں کو، برساتی نالوں کو ماڈل نالہ بنانے کا منصوبہ، اورنگی اور گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دونوں برساتی نالوں کے 3 مختلف مقامات پر 6 ٹیمیں متعین کی گئی ہیں۔ نالے کی زمین پر بنائے گئے رہائشی یونٹس کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے برساتی نالوں کو ماڈل نالہ بنانے کا منصوبہ، اورنگی اور گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ دونوں برساتی نالوں کے 3 مختلف مقامات پر 6 ٹیمیں متعین کر دی گئی ہیں۔ نالے کی زمین پر بنائے گئے رہائشی یونٹس مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے برساتی نالوں پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ گجر نالے اور اورنگی نالے پر تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سینئر ڈائریکٹر محکمہ انسداد تجاوزات بشیر صدیقی آپریشن کی قیادت کر رہے ہیں۔ گجر نالے پر بیک وقت 3 مقامات پر 6 ٹیموں نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ اورنگی نالے پر بھی بیک وقت 3 مقامات پر 6 ٹیمیں تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتی رہیں۔ آپریشن کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر رینجرز ڈسٹرکٹ پولیس
इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, सिटी वार्डन्स के ऑफिसर्स और जवान बड़ी तादाद में मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद के बल्दियाती इदारों की तमाम तर तवज्जो 3 बड़े बरसाती नालों को मॉडल नाला बनाने पर मरकूज है। शहर के 38 छोटे बड़े बरसाती नाले कचरे से भरे नजर आते हैं। ऐसे ही जिला बस्ती के इलाके बफर जोन सेक्टर 15A4 में भी नाले में कचरा जमा रहना मामूल बन गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में नालों की सफाइयों का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ सफाइयाँ बल्कि हम ये देख रहे हैं कि 3 जो मरकज़ी नाले हैं शहर कराची के, महमूदाबाद, औरंगी नाला और गुज्जर नाला, इन तीनों नालों की ना सिर्फ सफाई बल्कि इसके अतराफ़ में जो तजावज़ात हैं उनको भी मस्मार करने का सिलसिला जारी है। लेकिन जो शहर के 38 दीगर नाले हैं, अंदरूनी नाले जो इलाके के हैं, उन पर सफाई की किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 15A4 बफर जोन का इलाका है ये। यहाँ का ये नाला देख सकते हैं कि एक कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। यही नाला था जो गुज़श्ता साल जो है सफाई ना होने के बाइस जो है बारिशें जब तेज़ हुई थी तो ना सिर्फ ये सड़कें बल्कि अतराफ़ के घर भी ज़ेर आब आ गए, तो बड़ी परेशानी और मुश्किलात का सामना यहाँ के अहले मोहल्ला को, इलाका मकीनों को करना पड़ा था। और अब भी यही सूरत हाल है कि इन नालों की ना सिर्फ यह कि यहाँ सफाई नहीं की जाती है बल्कि कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं, बल्कि इस नाले के ऊपर जो हम देखें बिल्कुल ये कब्जा नज़र आता है। पुरानी गाड़ियाँ हैं जो कि लगता है बसों से यहाँ पर खड़ी हुई हैं, लेकिन इन खड़ी हुई गाड़ियों को ना सिर्फ यहाँ से हटाया नहीं जाता है बल्कि ये बताया जाता है कि ये एक जो पुरानी गाड़ियाँ जब यहाँ पर खड़ी हुई हैं नाले पर, तो यकीनन जो है जो दीगर जो जुराइम में मुलव्विस अफराद होते हैं जो कि किसी भी इलाके के अंदर जो है एक ख़राब माहौल पैदा करने का बाइस बनते हैं, उनकी भी आमाजगाह बनती हैं ये गाड़ियाँ। तो ना सिर्फ ये कि इन नालों की सफाई भी नहीं हो पाती है, इसके बंद होने की वजह से यहाँ पर इन गाड़ियों के, पुरानी गाड़ियों के यहाँ पर कब्ज़ा होने की वजह से सफाई सुथराई का काम भी नहीं हो सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि जो अतराफ़ के हम देखते हैं कि अहले मोहल्ला जो इलाका मकीन है वो भी परेशान नज़र आते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ ये कि इन पुरानी गाड़ियों को उठाने वाला कोई नहीं है, इस नाले की सफाई करने वाला कोई नहीं है। ना सिर्फ यही नहीं बल्कि इस नाले के ऊपर जो है कचरा भी फेंक दिया जाता है, इस कचरे को भी नहीं उठाया जाता है। ये कचरा कुंडी का मंजर पेश करता हुआ नज़र आता है। लगता यह है कि यहाँ महीनों और बरसों से ये कचरा नहीं उठाया गया है। कचरा क्या उठेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी गाड़ियाँ उनको नहीं हटाया जाता है, तो इन गाड़ियों के ना हटने की वजह से यहाँ पर कचरे की सफाई भी नहीं हो पाती है और ये गंदगी का मंजर पेश करता हुआ ये इलाका नज़र आता है। बफर जोन 15A4 का ये इलाका है। अब ये नाला है, नाले के ऊपर ये एक लगता यह है कि कचरा कुंडी बन गई है और कई माह से ये कचरा नहीं उठाया गया है। ना सिर्फ पुरानी गाड़ियाँ बल्कि एक मोबाइल भी देख सकते हैं कि वो कचरा कुंडी की तरह यहाँ पर पड़ी हुई है। इसको ना सिर्फ जो है सरकार ने भी बनवाने की जहमत नहीं की है कि इसको इस्तेमाल में पुलिस के लाया जाए, बनवा कर जो हम सूरत हाल देखते हैं कि इलाका थाना मोबाइल्स की जो है बिल्कुल उनको मरम्मत पर तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन इसी तरह यहाँ पर शहर कराची के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ 38 नालों की सफाई अशद ज़रूरी है, वहाँ इन नालों के अतराफ़ में जो ये कब्ज़ा है इसको भी हटाने की ज़रूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के बरसाती नालों से कचरे की सफाई ना हो सकी। शहर कायद के बेशतर बरसाती नाले कचरा कुंडी में तब्दील हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का मरकजी नाला कचरे के बायस चौक हो गया। गंदगी के बायस अतराफ के इलाके में ताफुन फैल गया है। इलाका मकीन कहते हैं बारिश होती है तो नाले से निकलता गंदा पानी जीना मुहाल कर देता है। बल्दिया कोरंगी के अफसरान से इल्तिजा करते हैं कि नाले से कचरा साफ कराया जाए। शहर कायद में कचरे से भरी ये जगह कोई कचरा कुंडी नहीं बल्कि ये मंजर है कराची के तबाहाल जिला कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया के मरकजी बरसाती नाले का, जहां कचरा इस कदर भर चुका है कि देखने में अब ये कचरा कुंडी लगने लगी है। नाले की दीवारें भी टूट चुकी हैं जबकि शाहराह समेत पूरे इलाके में बदबू और ताफुन फैल रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि कोरंगी में हर गली हर जगह कचरा फैला है। अफसरान से इल्तिजा करते हैं कि नाले से कचरा साफ कराएं। नाले भरे हुए हैं और कचरा बहुत ज्यादा है इनके अंदर और सफाई हुई नहीं है इसके अंदर। यहाँ तकरीबन 5-6 महीने हो गए, उससे पहले भी सफाई नहीं हुई है। लिहाजा सफाई होनी चाहिए यहाँ पर ताकि बारिश आए तो गंदगी ना फैले। मुकम्मल सफाई कोई भी नहीं करता नालों की। बारिशों में ये हालत होता है कि रोडों के ऊपर पानी होता है और कचरा फैला हुआ होता है हर तरफ। पूरे रोड जो है ना नाले से भर जाते हैं।
6-6 महीने तक जो है ना कचरा कोई उठाने नहीं आता। बारिशों में नालों से किनारों से पानी बाहर आके सारे कचरे जो है ना रोड पूरे बंद हो जाते हैं। यहाँ से लेके और वो तक अपना गोदाम चौरंगी तक यही हाल है नालों का। या 2 साल से तो सफाई हो ही नहीं रहा है और नाले भर जाता है, खुद लोग आते देख के चला जाता है और सफाई भी नहीं होते, क्लियर नहीं होते, कोई चीज़ देखभाल ही नहीं है। पूरा पानी नाले का ऊपर से रोड में आ जाता है, कचरा भी रोड में आ जाता है। सफाई अभी होनी चाहिए इन दिनों में, क्योंकि बारिश का मौसम होने लगा है, तो अभी सफाई कर देंगे तो बेहतर है। वो तो आप भी देख सकते हैं क्या हाल है। तो ये पानी बिल्कुल बाहर निकलना शुरू हो जाता है, पूरे इंडस्ट्री एरिया का रोड बंद हो जाता है। ये वाला सामने वाला जितना भी रोड है ये बंद हो जाता है। कराची में जिला कोरंगी इंतजामिया की अदम तवज्जही के बाइस तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, जहां ना सफाई का कोई इंतजाम है और ना ही बल्दियाती नुमाइंदे कोई काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत बरसात से कबल नालों की सफाई पर तवज्जो दे, ताकि हमें बारिशों में परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के बरसाती नालों से कचरे की सफाई ना हो सकी और औरंगी नाले में जगह जगह कचरे के बाइस पानी की रवानी भी मुतासिर होने लगी है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी अपनी अफादियत खोने लगा। कराची पैकेज में शामिल मंसूबे पर अमल दरामद मुहाल। कराची के बरसाती नालों से कचरे की सफाई तहाल ना हो सकी। औरंगी नाले में जगह जगह कचरे के सबब पानी की रवानी मुतासिर है। औरंगी नाले से मुत्तसिल रिहायशियों की दुहाइयाँ कहते हैं ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आकर नाले में कचरा फेंक कर चले जाते हैं। बारिशों में हमारे घरों में गंदा पानी आ जाता है। हुकूमत जल्द औरंगी नाले की सफाई का बंदोबस्त करवाए। शहर कायद में बरसात भी हो गई मगर बरसाती नालों से कचरे की सफाई ना हो सकी। ये मनाजिर है कराची के बड़े नालों में शुमार होने वाले औरंगी नाले की, जहां नाले में जगह जगह कचरे और मिट्टी के सबब पानी की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। जहां तूफानी बारिशों के बाइस नाले का गंदा पानी इलाका मकीनों के घरों में भर जाता है। शहरी कहते हैं कि न जाने कहां कहां से लोग आकर इस नाले में कचरा फेंक कर चले जाते हैं। बारिशों में हमारे घरों तक गंदा पानी आ जाता है। हुकूमत जल्द औरंगी नाले की सफाई का बंदोबस्त करवाए। ये तो साफ करने की जरूरत है। पीछे आप देख रहे हैं ऐसे हालत, लोग भी अब यहाँ पर कचरे फेंक रहे हैं। जो यहाँ से लोग गुजरते हैं, मतलब लेडी वाले और दुकानदार, ये भी सब यहाँ पर कचरा फेंकते हैं। सालों से सफाई नहीं हो रहा है। अगर तूफानी बारिश आ गया तो ये सब पानी जो है फैल जाएगा गलियों में और रोडों में, जिससे लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना पड़ेगा। इससे पूछने वाला कोई नहीं है, इतने सालों से पड़ा हुआ है। पिछले बारिश में सारा हुआ था, पानी सारा ऊपर आया था, सारा घर सारा ख़राब किया था, पानी अंदर चला गया था घरों में। गवर्नमेंट को चाहिए सफाई करे, नाला साफ करे ताकि पानी जो है ना पुल के घरों में न जाए आसपास। ये तो कई मरतबा बारिश है जो है ना, ये पानी जो है नाला भर जाता है, कई मरतबा ये घरों के अंदर घुस जाता है। वाज़ेह रहे कि कराची में गुज़िश्ता साल होने वाली तूफानी बारिशों के बाइस औरंगी नाला ओवरफ्लो हो गया था, जिसके बाद कई अरसे तक नाले का गंदा पानी इलाके की गलियों और शाहराहों पर मौजूद रहा था। औरंगी नाले में जल्द सफाई के इक़दामात न किए गए तो नताइज क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में बिलबोर्ड गिरने से जख्मी नौजवान को इंसाफ ना मिल सका। जख्मी नौजवान अशर कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। मुतासरा नौजवान के वालिद का इंसाफ ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। जिला वस्ती इंतजामिया निजी शॉपिंग मॉल को नोटिस जारी करके जिम्मेदारियों से सुबकदोश साइन बोर्ड लगवाने के जिम्मेदारान के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जा सका। कराची में बिलबोर्ड गिरने से जख्मी नौजवान को इंसाफ ना मिल सका। जख्मी नौजवान अशर कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। मुतासरा नौजवान के वालिद का इंसाफ न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। जिला वस्ती इंतजामिया निजी शॉपिंग मॉल को नोटिस जारी करके जिम्मेदारियों से सुबकदोश साइन बोर्ड लगवाने के जिम्मेदारान के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जा सका। तूफान की पेशगोई से कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने KMC और DMCs को वाज़ेह अहकामात दिए थे कि मुख्तलिफ इलाकों से साइन बोर्ड हटा लिए जाएं, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से इश्तिहारात तो हटा दिए गए मगर दियो हैकल साइन बोर्ड बदस्तूर मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स और शाहराहों से हटाए ना जा सके। तूफानी हवाओं के बाइस जिला वस्ती के लकी वन शॉपिंग मॉल का साइन बोर्ड नौजवान पर आ गिरा, जिसके बाइस साइन बोर्ड के नीचे दबकर नौजवान जख्मी हो गया। शॉपिंग मॉल में मौजूद अफराद ने नौजवान को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने के बाइस नौजवान माजूर
معذور ہو گیا۔ نوجوان کے والد کے مطابق اشر کی ریڑھ کی ہڈی L1 ٹوٹ گئی ہے۔ MRI کے بعد پتہ چل سکے گا کہ علاج ممکن ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے طوفان سے پہلے بل بورڈ اتارنے کے احکامات دیے تھے، لیکن ضلع وسطی انتظامیہ نے احکامات نظر انداز کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انصاف نہ ملا تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میرے بیٹے پہ جو آندھی طوفان چلا ہے اس دن مینجمنٹ کی غفلت کی وجہ سے میرا بیٹا اس سائن بورڈ کے نیچے آ گیا۔ کئی لوگ آئے، ان میں ایک میرا بیٹا تھا، باقی لوگ بچ گئے۔ میرے بیٹے کے اوپر بورڈ گرا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میرا بیٹا معذور ہو گیا۔ آج میرا بیٹا ہے، کل کسی اور کا بیٹا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ کہ یہ مینجمنٹ کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، CM کا آرڈر تھا کہ تمام کراچی سے سائن بورڈ اتار دیے جائیں، لیکن ان کی غفلت کی وجہ سے کوئی بورڈ نہیں اترا۔ لہٰذا میں بہت پریشان ہوں۔ میرا بچہ معذور ہو گیا ہے۔ 1 سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، آج 3 دن ہو گئے، مینجمنٹ نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ نوجوان اشر کی مدیت میں فیڈرل بی ایریا انڈسٹریل ایریا تھانے میں مقدمہ لکی ون مال کے خلاف درج کر لیا گیا۔ اشر کے مطابق لکی ون مال میں بطور سیلز مین ملازمت کرتا ہوں۔ میں کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کر رہا تھا کہ دیوار پر لگا سائن بورڈ مجھ پر آ گرا، جس کے باعث میں چلنے پھرنے سے معذور ہوا۔ دوسری جانب ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ سینٹرل نے لکی ون مال انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نجی شاپنگ مال سے معمولی چالان لے کر شاپ بورڈز لگانے کی اجازت موجودہ ڈپٹی کمشنر محمد بخش راجہ دھاریجو کی منظوری سے سابقہ میونسپل کمشنر سمیرہ حسین اور سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ محمد حارث نے دی تھی۔ چالان کی مد میں ضلع وسطی کو لاکھوں کا نقصان پہنچایا گیا تھا۔ گزشتہ مالی سال میں مذکورہ شاپنگ مال سے تقریباً 23 لاکھ کا چالان وصول کیا گیا تھا، جبکہ رواں مالی سال 10 لاکھ روپے بھی چالان کی مد میں وصول نہیں کیے گئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ شہر بھر میں دیو ہیکل سائن بورڈ بدستور آویزاں ہیں۔ حادثات کے باوجود بلدیہ عظمیٰ کراچی اور DMCs حرکت میں نہ آ سکی۔ مختلف علاقوں میں شاپنگ مالز، عمارتوں اور شاہراہوں پر سائن بورڈ آویزاں ہیں۔ بلدیاتی اداروں نے عدالت اور سندھ حکومت کے احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ شہر بھر میں دیو ہیکل سائن بورڈ بدستور آویزاں ہیں۔ حادثات کے باوجود بلدیہ عظمیٰ کراچی اور DMCs حرکت میں نہ آ سکی۔ مختلف علاقوں میں شاپنگ مالز، عمارتوں اور شاہراہوں پر سائن بورڈ آویزاں کر دیے گئے۔ بلدیاتی اداروں نے عدالت اور سندھ حکومت کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ضلع ملیر عدالتی اور حکومتی احکامات سے آزاد۔ ڈپٹی کمشنر ملیر کے مرکزی دفتر کے سامنے دیو ہیکل سائن بورڈ آویزاں ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مبینہ رشوت کے عوض غیر قانونی کاموں کی کھلی اجازت دی گئی ہے۔ ضلع ملیر انتظامیہ نے خلاف ضابطہ کاموں پر آنکھیں بند کر لی ہیں۔ مرکزی شاہراہ پر لگے سائن بورڈ سے جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ شہری کہتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملیر اور اسسٹنٹ کمشنر روزانہ اس شاہراہ سے گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عدالتی اور حکومتی احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کمشنر کراچی نوید شیخ نے کہا ہے کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات کی روک تھام اور ان کے خاتمے کے لیے تمام ادارے اپنا کردار مؤثر طور پر ادا کریں اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اپنے دفتر میں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں شہر میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کی روک تھام، ان کے خاتمے کے اقدامات اور کارکردگی کا جائزہ لینے والے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام ادارے اعلیٰ عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے ترجیحی اقدامات کریں، یقینی بنائیں کہ شہر سے غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کا خاتمہ ہو، بلڈنگز قوانین پوری طرح نافذ ہوں اور شہر میں تجاوزات کے رجحان کو روکنے کے مقاصد حاصل ہوں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ مختلف محکموں اور اداروں کی حدود میں واقع رفائی پلاٹس پر تعمیر کیے جانے والے غیر قانونی میرج ہالز کے خاتمے کی کارروائی جاری رہے۔ ابھی تک 158 غیر قانونی تعمیر شدہ میرج ہالز منہدم کیے جا چکے ہیں، جبکہ دیگر قانونی میرج ہالز منہدم کرنے کے لیے کارروائی کا عمل جاری ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر کراچی انتظامیہ کی نگرانی میں YMCA میں غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اجلاس نے تمام ڈپٹی کمشنرز، بلدیہ عظمیٰ، تمام ضلعی بلدیات، کنٹونمنٹ بورڈز، رجسٹرار، کوآپریٹو سوسائٹی اور ترقیاتی اداروں کو ہدایت کی کہ شہر میں شہریوں کی تفریح کے لیے قائم کیے جانے والے تمام پارکوں کی بحالی کے لیے ترجیحی اقدامات کریں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور بلدیہ عظمیٰ کو ہدایت کی گئی کہ وہ غیر قانونی تعمیرات منہدم کرنے کی
कार्रवाइयों के बारे में जामे रिपोर्ट तैयार करे और कमिश्नर कराची को पेश करे ताकि सुप्रीम कोर्ट को पेश की जाने वाली कारकर्दगी की रिपोर्ट में ये तफसीलात शामिल की जा सकें। जिला जनूबी के इलाके लियारी जोन में सफाई की नाकिस सूरत हाल पर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट जुबैर चन्ना ने बरहमी का इजहार करते हुए नए सैनिटरी वर्कर्स भर्ती करने की हिदायत जारी कर दी है। कहते हैं जो सैनिटरी वर्कर्स काम नहीं कर रहे उन्हें घर भेजें, 1 महीने में सूरत हाल बेहतर नहीं हुई तो मुआहदे के मुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर चन्ना ने जिला जनूबी लियारी जोन में सफाई की नाकिस सूरत हाल पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि यूसी 7, 13 और यूसी 15 से बहुत शिकायत मौसूल हो रही हैं और मैंने भी एक गली विजिट की है। अभी तक सिर्फ कुछ इलाकों से घर घर से कचरा उठाया जा रहा है जबकि गाड़ियां और अमला जरूरत के मुताबिक तैनात नहीं है। उन्होंने कहा कि अमले और मशीनरी की कमी फौरी तौर पर पूरी की जाए। जो डीएमसी के सैनिटरी वर्कर्स काम नहीं कर रहे उन्हें वापस भेजें और नए सैनिटरी वर्कर्स जरूरत के मुताबिक भर्ती करें। जुबैर चन्ना का कहना था कि स्वीपिंग और कचरा रोजाना की बुनियाद पर 2 शिफ्ट में उठाया जाए। घर घर से कचरा उठाने के लिए 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। बसूरत दीगर सूरत हाल बेहतर नहीं हुई तो मुआहदे के मुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां डस्टबिन खराब हो गए हैं नए तब्दील करें। इस मौके पर एमडी सॉलिड वेस्ट ने कहा कि सर्वेयर मुकर्रर करें जो इलाके का अचानक दौरा करें और हाजिरी चेक करें। जिस सैनिटरी वर्कर की हाजिरी तस्दीक होगी उसे तनख्वाह मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोरंगी इरफान सलाम ने बल्दिया कोरंगी को सरसब्ज शादाब बनाने का फैसला कर लिया। कहते हैं बाकरी पंप 9000 था 7000 रोड 13000 ग्रीन बेल्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। लांडी कोरंगी में नए पार्कों के हवाले से तैयारियां जारी हैं। जिला कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम ने कहा कि बल्दिया कोरंगी को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं और बल्दिया कोरंगी के अवाम को बहुत जल्द खूबसूरत और पार्कों का तोहफा देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची घवर खान लगारी ने कहा है कि जिला कौंसिल की खुशहाली के लिए अपने तजर्बात को ज़ेर इस्तेमाल ला के इलाके की बेहतरी के लिए सरगर्म अमल हैं। इलाके के अवाम की खिदमत करना हमारे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। कोशिश है जो भी तरक्याती काम शुरू किया जाए वो अहले इलाका की ज़रूरत को पूरा करें। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची घवर खान लगारी ने चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्ला बलोच और दीगर अफसरान के हमरा यूनियन कौंसिल मेमन गोट के मुख्तलिफ जारी तरक्याती प्रोजेक्ट का जायजा लिया। उन्होंने यूनियन काउंसिल के इलाके में जिला काउंसिल की जानिब से बनाए गए शहीद अब्दुल्ला मुराद फुटबॉल स्टेडियम में होने वाले उमूर का मुआयना किया और फुटबॉल स्टेडियम की जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल कराची घवर खान लगारी का कहना था कि गुज़िश्ता दौर और नई शुरू की जाने वाली स्कीम्स को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। तरक्याती स्कीम्स की नौयत किसी भी तर्ज की हो वह अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाती है, इसलिए उनको मिसाली बनाने के लिए अपनी सलाहियतों को बरूएकार ला रहे हैं। चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्ला बलोच का कहना था कि जिला कौंसिल की हुदूद में कई फुटबॉल स्टेडियम मौजूद हैं जिनमें से कई आलमी मयार के हैं। इस इलाके के मशहूर खेल को जिला कौंसिल की सतह पर भरपूर तवज्जो हासिल है। इसके अलावा दीगर खेलों की भी हौसला अफजाई जारी है। जिला कौंसिल की खुशहाली के लिए अपने तजर्बात को ज़ेर इस्तेमाल ला के इलाके की बेहतरी के लिए सरगर्म अमल है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ अली शाह, डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख, मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत अबू बकर मेमन भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने कहा है कि अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी हमारा मनसबी फरीज़ा है। सहूलियात की फराहमी में गफलत, अदम दिलचस्पी अवामी खिदमत में रुकावट है। अवामी खिदमत के लिए अफसरान अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाएँ।
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबदीन मीरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर रियाज अहमद कथरी ने महकमा जाती अफसरान से अलग-अलग मुलाकातें की, जिसमें महकमे की कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान बल्दियाती सहूलियात की फराहमी, ज़राए आमदन में इजाफे और महकमों की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली आगाही हासिल की। ज़ैनुल आबदीन मीरानी और रियाज अहमद खत्री ने महकमों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने का हुक्म देते हुए अफसरान को मजीद बेहतर किरदार अदा करने की हिदायत की। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर का कहना था कि अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी हमारा मनसबी फरीजा है। सहूलियात की फराहमी में गफलत, अदम दिलचस्पी अवामी खिदमत में रुकावट है, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवामी खिदमत के लिए अफसरान अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएं। जैसे कि आपको पता है कि हम क्वार्टरली जो है वो मीटिंग्स करते हैं तमाम डिपार्टमेंट्स की, उनकी प्रोग्रेस जानने के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो उनको टारगेट्स दिए हुए हैं आया वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसी हवाले से आज तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को हमने तलब किया था। MC साहब और मैंने जो है उनके जो भी प्रोग्रेस है उसको रिव्यू किया है, और हमें ज़रूरत इस चीज़ की महसूस हुई है कि जो हमारी रेवेन्यू जनरेशन है उस पर मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है। लिहाजा हमने जो हमारा लोकल टैक्स और टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उनको हमने टारगेट दिया है कि नेक्स्ट जून एंड तक जो है वो अपने रेवेन्यू को इन्हांस करें ताकि जो डेवलपमेंट के काम है वो मुतासर ना हो सकें। जैसे कि आपको पता है कि इमरजेंसी हमने पहले ही नाफिज कर दी थी, ये जो साइक्लोन आ रहा है उसकी वजह से हमने तमाम अपने स्टाफ की जो है छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। तैयारी हमने पूरी कर ली है, हमारी मशीनरी, डी वाटरिंग पंप और सारी चीज़ें रेडी हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो हमारा स्टाफ उसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने महकमा जाती अफसरान को हिदायत दी कि बल्दिया मलीर के बरसाती नालों की सफाई फौरी शुरू करवाई जाए, बरसाती नालों की बहाली और रवानी के लिए इकदामात अमल में लाए जाएं। मरकजी और ज़ैली शाहराहों पर बिजली के तारों से टकराने वाले दरख्तों की कटाई और सेंट्रल आयरलैंड के पौधों की छटाई अमल में लाई जाए। मरकजी और ज़ैली शाहराहों से बिल बोर्ड और साइन बोर्ड हटाए जाएं। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन, डायरेक्टर एडवर्टाइजिंग सनाउल्लाह, डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट बल्दिया मलीर नदीम इकबाल मीरानी, डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट नसीर अयूब, डायरेक्टर एडमिन मसरूर नवाज खुश, असिस्टेंट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट सलमान कादरी और दीगर भी मौजूद थे। कराची के इलाके बनारस चौक पर पानी की लाइन लीक होने से शाहरा खस्ता हाली का शिकार हो गई, जिसके बायस अहले इलाका और मुसाफिरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शहर कायद में पानी नलों में आने के बजाय शाहराहों पर जाया होने लगा। बनारस चौक पर पीने के पानी की सप्लाई लाइन पिछले कई अरसे से लीक है, जिसकी वजह से शाहरा मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुकी है, जबकि शाहरा पर जगह जगह कचरे के ढेर भी लगे हैं, जहां इंतजामिया की जानिब से कोई काम नहीं कराया जा रहा। शाहरा पर मौजूद खड्डे और खड्डों में भरा पानी न सिर्फ इलाका मकीनों के लिए बल्कि गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए भी वबाले जान बना हुआ है। शहरी कहते हैं कि कुछ टाइम कबल यहाँ गवर्नर सिंध की जानिब से रोड का इफ्तिताह भी किया गया था, लेकिन न शाहराह पर काम हुआ और न ही पानी की लीकेज बंद की गई। ये काफी टाइम से ये अभी से तो नहीं है, ये तो तकरीबन 5-6 महीने हो गए इसी तरह ये सेवरिंग लैंड और ये साफ पीने का पानी है, लेकिन ये इसी तरह मुरम्मत नहीं हो रहा है, ज़ाया हो जा रहा है। हुकूमत से यही अपील है कि भाई तमाम आवाम को तकलीफ है, इससे आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और अगर ये सही हो जाए तो तमाम आवाम के लिए सहूलत बन जाएगी। सर ये तो ज़माने हो गए कि पड़ा हुआ है, ना कोई इसका कोई पूछने वाला है ना कोई पूछना। हाल है ये पहले लैंड डलवा दिया पानी का, अब वैसी की वैसी छोड़ दिया है, अब कोई पूछने वाला है इसके लिए। तो गाड़ियों को कितनी मुश्किलात है, अगर कोई मरीज़ आए एम्बुलेंस है उसके लिए काफ़ी परेशानियाँ होती है। जैसे भी अब कोई गाड़ी फंस जाती है तो घंटों घंटों यहाँ पर लैंड लग जाता है, फिर सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। हमने 10 बार कंप्लेंट किया हम लोग ने खुद, यहाँ पर पानी का लैंड टूटा हुआ था, यहाँ पर हमारे MPS से भी आया था, MNA से भी आया था, यहाँ उन लोग विजिट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर देखते पानी वानी सारा जमा हो जाता है। यहाँ गवर्नर भी आया था, इब्तिदा किया, मगर रोड का कोई हाल नहीं निकला अभी तक। कराची के बेशतर मुकामात और शाहराहों पर जगह जगह या तो सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है या फिर पानी सप्लाई लाइन लीक होने की वजह से पानी जमा है, जो कि न सिर्फ शाहराहों की खस्ता हाली की वजह बन रहा है बल्कि ट्रैफिक की रवानी को भी शदीद मुतासिर करता है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नोमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।